Bismillahirrahmanirrahim. My distinguished medical consultants, esteemed colleagues and honored guests, Assalamu alaikum and a very good morning. I, Dr. Fareha Hussain, on the behalf of Nephrology Department, welcome you all to the pre-conference renal histopathology workshop under the kind supervision of our worthy HOD, Professor Dr. Sajid Rafiq Abbasi. Today, we gather to celebrate a momentous occasion with gratitude and respect. We come together to honor this special moment where we acknowledge the power of medical innovation, human resilience, and the unwavering support of all of you, which make today's event possible. Dear Dr. Shifa Ilyas, we would be honored if you could join us to recite a few verses of Holy Quran. Jazakallah. Before starting the event, I would like to extend my hearty welcome to our honorable guests of the event for attending today's pre-conference renal histopathology workshop. We are here to celebrate the continuous efforts put in by each and every one of you, and this would not be possible without you people. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome our distinguished speaker, Professor Dr. Mubarak from SIUT Karachi, to deliver a lecture on fundamentals of histopathology for a nephrologist. Please, sir, join us on the stage and share your insights with us. Thank you. Thank you very much for kind communication. Now, as you all know, renal pathology is considered the most difficult area of surgical pathology. However, I will try to make it as simple as possible because it is primarily tailored to nephrology residents. So, I will try my best to make it as simple as possible. As you know, normal kidney parenchyma has four components. These are the glomerular
either primary or secondary disease of kidney. But this talk will be focused on glomerular pathology. It will not be possible to cover all disease of all components of the kidney parenchyma. So this is the normal. For understanding renal pathology, you must know the normal structure of a glomerulus. So there are certain points which you should always remember about normal structure of glomerulus. This is the overall boundary of the glomerulus. This is the Bowman's capsule. Of course, it is composed of basal membrane and is lined by a single layer of epithelium. That is the parietal epithelium. This is the parietal epithelium. And this is the tuft, glomerular tuft of capillaries. This is not a single tuft. There are 8 to 10 tufts which combine to form the glomerular tuft. As you can see, normally the tufts are not very distinct, not easily appreciated. But in some disease, these tufts become very prominent. The tufts are also called lobules or segments. So there are multiple tufts, but overall this is also, whole glomerulus is also considered a tuft. It is nothing but a vascular structure. It is composed of capillaries. And you can see it is attached at only one place. Normally it is attached, tuft is attached at only one place. That is the vascular core or hilum of the glomerulus. Rest of the tuft lies free within the Bowman's space. If at any other area, if there is any attachment between the tuft and the Bowman's capsule, that is pathological. Normally you will not see any attachment. And you can see there are cells within the tuft and there are non-cellular structures. And 3 types of cells are found within the tuft. There are 3 types of cells. And the 4th type is found lining the Bowman's capsule. So there are basically 4 types of cells within resident cells within the glomerulus. Okay? And you can also appreciate that the normal glomerulus has got open appearance. It is open from within. You can see these are capillary lumina. Capillary lumina. These are all patent, and it is also open from outside. This is the Bowman's space. This open structure is very important for normal function of the glomerulus. If capillaries are blocked, or if Bowman's capsule is blocked with whatever material, the glomerulus will not be able to function. Okay, so ये open appearance, it is very important for normal functioning of the graft. अच्छा, now this is silver stain, and as you can see, silver stain appears black. Anything which is silver positive appears black. I think this is something. Can you see? This is black. This Bowman's membranes, glomerular capillary walls, and mesenterium, these all should appear black. The biochemical structure of mesenterium is similar to that of basement membranes. So both appear black on silver stain. And this is PA stain. Regarding the disposition or distribution of the 3 cells within the tuft, this PA stain is very important to understand that. As you can see, we identify the cells with the help of nuclei. So these are the cells with these blue rounded structures. These are the nuclei of the cells. A cell, a nucleus or a cell which is surrounded by thick material on all sides. This is the mesangial cell. Okay, this is the identification of mesangial cell. अच्छा, एक और सेल जैसे ये वाला सेल है. This cell, इसका nucleus lies outside the capillary wall. This is the visceral epithelial cell or podocyte. And the third type of cell is endothelial cell. वो सेल जिसका nucleus capillary wall के अंदर हो और wall के साथ attach है. That is the endothelial cell. ठीक है? तो this is the endothelial cell, this is the mesangial cell, और this is the podocyte. अब ये वाला सेल क्या होगा? एंडोथेलियल सेल नहीं, ये ब्लड का अपना सेल, सॉरी ये वाला ब्लड का अपना सेल होगा, बिकॉज इट इज नॉट अटैच्ड विद द कैपिलरी वॉल. ये मोनोसाइट होगा या लिम्फोसाइट होगा. एंडोथेलियल सेल शुड बी न्यूक्लियस शुड बी अटैच्ड विद द वॉल. ये कैपिलरी वॉल है. ठीक है,
तो 3 टाइप के सेल्स विदिन द डक्ट दे आर फाउंड विदिन द डक्ट। अच्छा, एक ग्लोब्यूल में अप टू 3 मेसेंजर सेल्स आर नॉर्मल, लेकिन अगर 4 हो गए दैट इज मेसेंजर पॉलीपेशन। नाउ इनमें से कौन सा सेल जो है रिस्पॉन्ड करता है ग्लोम जब ग्लोम की इंजरी होती है? व्हिच ऑफ दी सेल्स रिस्पॉन्ड? all four cells are capable of responding to glomerular injury. Even non-cellular structures हैं जैसे mesengium है, this is pink material is the mesengium, ये भी respond कर सकता है। mesengial matrix भी कुछ disease भी बढ़ता है, ठीक है? Even GBM भी disease को respond करता है। अब बेहतर GBM भी रिस्पॉन्ड करता है, इसमें रिडुप्लिकेशन होती है, इसमें स्पाइक्स बनते हैं, तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोम कैन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंजरी। वो डिपेंड करता है इंजरी किस कंपोनेंट में हो रही है, किस कंपार्टमेंट ग्लोम के हो रही है, ठीक है? दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम। ये एक डक्ट आपको दिखाया गया है, इसमें 3 कैपिलरीज है, ठीक है? इसमें ग्रीन लाइन पे फोकस करें, दिस ग्रीन लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स GBM, ठीक है? This green line represents GBM. अच्छा, यहाँ पे कितने सेल्स आपको दिख रहे हैं? How many types of cells are visible? एक ये सेल है, ये क्या सेल है? मेसेंजर सेल। ये सेंटर में होता है, कैपिलरीज के सेंटर में। This is the other cell type. ये क्या है? एंडोथेलियम, रेड कलर का एंडोथेलियम है। This is the पोडोसाइट या विसरल एपिथेलियल सेल, ठीक है? तो 3 तरह के सेल्स हमने अभी देखा कि डक्ट के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, GBM की डिस्पोजिशन को आप देखिए, एज यू कैन सी डज नॉट कंप्लीटली इनसर्किल द कैपिलरी। ये कैपिलरी एक है, ये दूसरी कैपिलरी है, ये तीसरी है, लेकिन GBM किसी भी कैपिलरी को चारों तरफ से कंप्लीटली इनसर्किल नहीं करता, बल्कि एक कैपिलरी से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी कैपिलरी पे चला जाता है, फिर तीसरी कैपिलरी पे, इस तरह पूरे ग्लोम के अंदर दिस इज जस्ट वन सिंगल GBM व्हिच undulates and makes different curves, capillaries, एक ही GBM होता है। तो ये पूरे ग्लोम को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। वन इज एंडोकैपिलरी कंपार्टमेंट एंड द अदर इज एक्स्ट्राकैपिलरी कंपार्टमेंट। ये जब भी प्रोलिफेटिव रीजन्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन ये टर्म्स हम कॉमनली यूज करते हैं। तो जो सेल्स इस ग्रीन लाइन के अंदर हैं, दे कम इन द एंडोकैपिलरी कंपार्टमेंट, उनकी प्रोलिफेरेशन को हम एंडोकैपिलरी प्रोलिफेरेशन कहेंगे। तो कितने टाइप के सेल्स हैं विदिन द एंडोकैपिलरी कंपार्टमेंट? मेसेंजियल और एंडोथेलियल। इन दोनों की प्रोलिफेरेशन को हम एंडोकैपिलरी प्रोलिफेरेशन कहेंगे। अच्छा, और दूसरा इन्फ्लेमेशन जो किडनी में और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन में एक फंडामेंटल फर्क है। यहाँ पे अगर न्यूट्रोफिल अगर कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर भी है, ल्यूकोसाइट है या मोनोसाइट है, दैट कंस्टिट्यूट्स इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल्स आते हैं तो हम उसको एक्सुडेशन कहते हैं, लेकिन इसको हम इन्फ्लेमेशन मानते हैं। जबकि बाकी अपेंडिक्स में जब तक वो एक्स्ट्रावाजेट ना हो सेल्स, तब तक हम उसको इन्फ्लेमेशन नहीं कहते। कैपिलरीज के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर होते हैं तो इन्फ्लेमेशन नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे ट्रांसप्लांट में एज वेल एज नेटिव किडनी में जब तक कैपिलरी ल्यूमिना के अंदर है तो भी इन्फ्लेमेशन कहलाता है, ठीक है? तो एंडोकैपिलरी में 2 हो गए, एक्स्ट्रा कैपिलरी कंपार्टमेंट में कितने सेल्स होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 4 सेल टाइप्स हैं रेजिडेंट सेल्स। तो उन दोनों की क्वालिफिकेशन को हम एक्स्ट्रा कैपिलरी क्वालिफिकेशन कहेंगे। उसमें कौन कौन से सेल्स आएंगे? विसरल और पेराइटल। पेराइटल यहाँ बाहर होगा, ठीक है? उन दोनों की क्वालिफिकेशन को हम एक्स्ट्रा कैपिलरी कहेंगे। वो क्वालिफिकेशन कहाँ पे हो रही होगी? विदिन द बाउमेन सिस्टम्स, और एंडोकैपिलरी की GBM के अंदर हो रही होगी, ठीक है? दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस एक ही तरह के होंगे। ये अल्टीमेटली एनकोड करते हैं कैपिलरी ल्यूमिना, उसको नैरो कर देते हैं। बाहर से क्वालिफिकेशन होगी तो भी कैपिलरी ल्यूमिना बंद हो जाएंगे, अंदर से क्वालिफिकेशन होगी तो भी ल्यूमिना बंद हो जाएंगे। और ल्यूमिना बंद होंगे तो GFR डिक्लाइन होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिस इज जस्ट वन कैपिलरी, वो डक्ट था, ये एक सिंगल कैपिलरी। अब इसमें आप देखिए ग्लोम के अंदर भी काफी कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है, इसमें स्पेसेस होते हैं, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो
अंडरस्टैंड करना नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैथोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, इसमें ये वाला एरिया कौन सा है? दिस इज द मेसेंजियम, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये वाइट स्पेस, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ कैपिलरी, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, या कैपिलरी वाल बोलें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बोलें, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाल बोलें। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड आउट दीज आर एंडोथेलियम, जो कि फेनेस्ट्रेटेड होती है। फिर बीच में क्या है? जीबीएम, और आउटसाइड पोडोसाइट, फुट प्रोसेसेस है, ठीक है। तो ये दिस कंस्टिट्यूट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अच्छा, यहाँ पे देखें जीबीएम और एंडोथेलियम के बीच में एक बहुत ही नैरो पोटेंशियल स्पेस है, दैट इज द सब एंडोथेलियल स्पेस। और इसी तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन और फुट प्रोसेस के बीच में भी एक वाइट स्पेस है, दिस इज सब एपिथेलियल स्पेस। इस सब एंडोथेलियल स्पेस को आप प्रॉक्सिमल लेयर भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल लेयर। इसमें भी डिपॉजिट्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये स्पेसेस दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं ग्लोम के अंदर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते होंगे। वो या तो यहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं मेसेंजियम में, या आपको सब एंडोथेलियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, या सब एपिथेलियल स्पेस में जमा हो सकते हैं, ठीक है। तो मेसेंजियम को आप देखें इज इन कंटिन्यूटी विद द सब एंडोथेलियल स्पेस, इनके बीच में कोई बैरियर नहीं है। तो कोई डिपॉजिट्स अगर बहुत ज़्यादा मेसेंजियम में, और सबसे पहले डिपॉजिट्स बनते कहाँ पे हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स कहाँ पे बनते हैं आपके ख्याल? ये सर्कुलेशन में भी बन सकते हैं और आके ग्लोम में डिपॉजिट हो सकते हैं, या दे कैन फॉर्म इन साइटू, ग्लोम के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन वाले हैं वो मोस्टली कहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे? सबसे प्रेफरेंशियल उनकी साइट क्या होगी? मेसेंजियम के अंदर, क्योंकि मेसेंजियम और ब्लड स्ट्रीम के बीच में कोई ख़ास बैरियर नहीं है एक्सेप्ट फॉर थिन फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम। लेकिन यहाँ पे जीबीएम नहीं है, इस साइड पे जीबीएम नहीं है, तो यहाँ के डिपॉजिट्स आराम से ये मेसेंजियम में आ जाते हैं। और मेसेंजियल सेल सबसे ज़्यादा ग्लोम में रिस्पॉन्ड करने वाले मेसेंजियल सेल्स ही है, सबसे ज़्यादा प्रोलिफेट ये मेसेंजियम को आप कंसीडर कर सकते हैं एज लिफ नोड ऑफ द ग्लोम। कहीं भी थोड़ी सी इंजरी होगी तो मेसेंजियम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये मेसेंजियल डिपॉजिट्स अब अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दे कैन गो इनटू द सब एंडोथेलियल स्पेस बिकॉज मेसेंजियम इज इन डायरेक्ट कंटिन्यूटी विद द सब एंडोथेलियल स्पेस। अच्छा, दूसरा ये डिपॉजिट जो सब एंडोथेलियल स्पेस में होंगे या मेसेंजियम में होंगे, दे एक्साइट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम के बिल्कुल करीब में होते हैं, बीच में सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियम इंटरवीन करता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन आपको मिलती है, थ्रोम्बोसिस भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ के प्रॉक्सिमल लेयर में अगर डिपॉजिट्स होंगे यहाँ पे, तो आपको इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस मिल सकता है। लेकिन अगर डिपॉजिट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं सब एपिथेलियल स्पेस में, वो मोस्टली इन साइटू बनते हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स कैन नॉट क्रॉस, स्पेशली बड़े डिपॉजिट्स हैं वो जीबीएम को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सब एपिथेलियल जो डिपॉजिट्स हैं मोस्टली दे आर फॉर्म्ड इन साइटू, ठीक है। लेकिन वो उनमें इन्फ्लेमेशन आपको नहीं मिलती। तो इसका प्राइम एग्जांपल है मेम्ब्रेनस जीएन। मेम्ब्रेनस जीएन में सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, इसको आप डिस्टल लेयर भी कह सकते हैं। तो डिस्टल लेयर में जब डिपॉजिट्स होते हैं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सब? अच्छा, मेसेंजियम से डिपॉजिट्स भी जा सकते हैं और इवन मेसेंजियल सेल्स के प्रोसेसेस भी सब एंडोथेलियल स्पेस में जा सकते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेसेंजियल इंटरपोजिशन। ये किस कंडीशन में आता है? एमपीजीएन में, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये यहाँ तक आ सकती है, ये वाला प्रोसेस यहाँ तक आ सकता है, फिर वो एक नई बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है वो एमपीजीएन पैटर्न में, ठीक है। अच्छा, ये ईएम पे वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाल का स्ट्रक्चर 3 लेयर्स है, एंडोथेलियम विच इज फेनेस्ट्रेटेड, इसके अंदर एक्चुअली होल्स होते हैं, फिर जीबीएम है, इसके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। और फाइनली ये फुट प्रोसेसेस है। अच्छा, फुट प्रोसेस के बीच में आप देखिए एक छोटा सा स्पेस है, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट,
लेकिन ये अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है जो इसको ब्रिज करा है, दैट इज द स्लिट डायफ्राम या स्लिट मेम्ब्रेन, और दिस इज द मेन बैरियर फॉर प्रिवेंटिंग फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये तीनों प्रिवेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो है इसका स्लिट मेम्ब्रेन का है, ठीक है। वो प्रोटीन्स की लीकेज को रोकने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। और इसका कैसे पता चला कि ये स्लिट मेम्ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है? हेरिडिटरी फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हैं वो उनमें जो प्रोटीन्स जिनकी डिफेक्टिव होते हैं वो स्लिट मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं। जैसे कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसमें नेफ्रिन की म्यूटेशंस होती है, नेफ्रिन पोडोसिन की म्यूटेशन से, और नेफ्रिन पोडोसिन इस स्ट्रक्चर की बनाने में रोल प्ले करते हैं। दिस इज अगेन TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ये पोडोसाइट है, यहाँ से प्राइमरी प्रोसेसेस निकलते हैं और ये सेकेंडरी प्रोसेसेस या फुट प्रोसेसेस ये आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, ठीक है। वन पोडोसाइट कैन गिव राइज टू फुट प्रोसेसेस टू मोर देन वन कैपिलरी। जैसे ये एक है, ये एक कैपिलरी है, दूसरी कैपिलरी, इसको भी प्रोसेसेस सेंड कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्लिट डायफ्राम। ये वाला है स्लिट डायफ्राम, ठीक है। इसमें आप देखिए नेफ्रिन है और दूसरा पोडोसिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब तो अराउंड 50 डिफरेंट प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड जो इसके स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं, और उनकी म्यूटेशन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हेरिडिटरी फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये ग्लोमेरुलर डिजीज़ की क्लासिफिकेशन, उनके नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। उसमें हम एक डिजीज़ प्रोसेस को भी देखते हैं कि ग्लोम के अंदर क्या प्रोसेस है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, और साथ में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए 2 पेयर्स ऑफ टर्म्स आर यूज्ड जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जस्ट लाइक डे एंड नाइट। अगर रात है तो दिन नहीं होगा, दिन है तो रात नहीं होगी। तो इसी तरह 2 पेयर्स ऑफ टर्म्स आर यूज्ड, वन इज फोकल वर्सेस डिफ्यूज, डिफ्यूज वर्सेस फोकल। डिफ्यूज का मतलब है मोर देन 50% और फोकल का मतलब है लेस देन 50% या इक्वल टू या लेस देन 50%, ठीक है। और दूसरा फिर एक इंडिविजुअल ग्लोम पे आप आते हैं। इंडिविजुअल ग्लोम अगर पूरा इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं ग्लोबल, और अगर उसका पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल, ठीक है। तो सेगमेंटल ग्लोबल और फोकल डिफ्यूज, ये 2 पेयर्स ऑफ टर्म्स है। तो इसको ये आप समझें, ये ग्लोम्स है, दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट ग्लोम्स, और ये पिंक कलर जो है ये एबनॉर्मलिटी को या लीजन को डिफाइन कर रहा है, ये पैथोलॉजी को डिफाइन कर रहा है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताएं कैसे है? फोकल, फोकल कैसे? ये सारे ग्लोम्स देखें, ये सारे कलर्ड हैं पिंक कलर में, तो क्या हुआ? डिफ्यूज एंड ग्लोबल। डिफ्यूज क्योंकि सारे ग्लोम्स पिंक कलर की है, और ग्लोबल इसलिए कि सारे के सारे पिंक कलर के हैं। व्हाट अबाउट दिस? फोकल एंड गुड, फोकल एंड ग्लोबल। फोकल इसलिए कि 10 में से 4 जो हैं इन्वॉल्व हैं, 40% इन्वॉल्व है, और ग्लोबल इसलिए कि जितने भी इन्वॉल्व हैं कंप्लीटली इन्वॉल्व है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? फोकल एंड सेगमेंटल। अब कोई ऐसी डिजीज है जिसका नाम इसी डिस्ट्रीब्यूशन पे रखा गया, FSGS, वो इसी तरह उसका नाम रखा गया, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो फोकल सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, स्क्लेरोसिस एक पैथोलॉजिक लीजन को डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी सी टेक्निकल कंसिडरेशंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कोर्स, आइडियली 2 कोर्स ऑफ बायोप्सी शुड बी ऑब्टेन। नेटिव रीनल को अगर सही से समझना है, एक फॉर्मेलिन में लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, और दूसरी कोर को आपको डिवाइड करना होता है फॉर IMF EM की स्टडी के लिए, और इसमें मल्टीपल स्पेशल स्ट्रेंस यूज होती हैं, मल्टीपल सीरियल सेक्शंस होते हैं। तो रीनल पैथोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूटीन पैथोलॉजी, ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ठीक है। ये अल्टीमेटली एक केस इस तरह है, सिर्फ दिस इज ओनली लाइट माइक्रोस्कोपी, फिर IMF अलग देखते हैं, EM अलग देखते हैं, फिर जाके उसकी कंप्लीट डायग्नोसिस बनती है।
अच्छा, ये एक हाउ टू अप्रोच रीनल बायसी, कैसे डायग्नोसिस हम करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, ये आई एम श्योर मेजॉरिटी वो जो नेफ्रो के रेजिडेंट्स होंगे, तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन रीनल बायसी की इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें भी इंडिकेशन, बायसी इंडिकेशन या क्लिनिकल सिंड्रोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जब केसेस करेंगे तो वहाँ पे आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। फिर सबसे पहले ऑफकोर्स पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी आती है, फिर आईएमएफ है। और लाइट माइक्रोस्कोपी आईएमएफ पे भी 99% ऑफ डिजीज़ की आप डायग्नोस बना सकते हैं, लेकिन थोड़े केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ईएम के बगैर आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आपको सबको कोरिलेट करना होता है। तो रीनल बायसी डायग्नोसिस इज ए कोरिलेटिव डायग्नोसिस, आप सब चीज़ों को कोरिलेट करके फिर डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं, किसी एक चीज़ से आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। ये रीनल बायसी प्रोफार्मा या रिक्वेस्ट फॉर्म बिल्कुल पर्पस बिल्ट ऐसी होनी चाहिए, टेलर मेड होनी चाहिए, उसमें रीनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एडिक्वेसी क्राइटेरिया नेटिव किडनी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन रूल ऑफ थंब के तौर पे 8 से 10 ग्लोम्स काफ़ी होते हैं। लेकिन मुझे बताएं रीनल बायसी हम क्यों करते हैं, काय के लिए करते हैं? रीनल बायसी इज डन नॉट ओनली फॉर मेकिंग डायग्नोसिस, ऑफकोर्स प्राइम उसका इंडिकेशन है मेक ए डायग्नोसिस, आपको डायग्नोसिस चाहिए। फिर ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप बायोप्सी इसके लिए करते हैं। तो बायोप्सी के लिए इतना टिश्यू होना चाहिए, 8 to 10 ग्लोम्स कार्टेक्स होना चाहिए। तो आप ये बाकी इंफॉर्मेशन प्रोग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेन्काइमा कैसा है, कितनी एक्टिविटी है, कितनी क्रॉनिसिटी है, ट्रीट करें नहीं करें, उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, स्पेशली फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोथ कार्टेक्स एंड मेडुला शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि एफएसजीएस की डायग्नोसिस के लिए कार्टिको-मेडुलर जंक्शन का होना ज़रूरी है। एफएसजीएस बिगिंस फ्रॉम कार्टिको-मेडुलर जंक्शन ग्लोमेरुलाई, वहाँ की ग्लोम्स हैं, वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, स्पेशल स्टेज में सबसे पहले पीएस ये ग्लोम नॉर्मल है या एबनॉर्मल? नॉर्मल हमने देखा था, एबनॉर्मल है। माइल्डली एबनॉर्मल या सीवियरली एबनॉर्मल? माइल्डली एबनॉर्मल। हमेशा क्लिनिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैपिलरीज को देखा करें, कैपिलरीज अगर पेटेंट हैं तो इसका मतलब है ग्लोम की कंडीशन बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, किस तरह का लीजन है? प्रोलिफेशन है, मिजेंजियम की प्रोलिफेशन है, दिस इज द मिजेंजियम, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी बड़ा हुआ है और सेल्स भी, सेल्स एक एक लोब्यूल के अंदर 10-10, 12-12 सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कैपिलरी ल्यूमिना देखें पेरीफ्री पे बिल्कुल पेटेंट है। तो अब इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? मिजेंजियल प्रोलिफेटिव पैटर्न, मिजेंजियल प्रोलिफेटिव जीएन, ठीक है। सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है एंड दैट इज द मिजेंजियम। और इस ग्लोम में इंजरी कहाँ पे हो रही है? सिर्फ मिजेंजियम तक ही इंजरी महदूद है, इसलिए सिर्फ मिजेंजियम का रिस्पांस आया है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट्स होंगे, किसी न किसी चीज़ के डिपॉजिट्स होंगे, उसकी वजह से ये ग्लोम रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन वो कोई इंजूरियस एजेंट आप यहाँ देख रहे हैं, कोई नज़र आ रहा है? नहीं, उसके लिए आप आईएमएफ करेंगे, ईएम करेंगे, तब आपको नज़र आएंगे। लेकिन ग्लोम का अपना रिस्पांस वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मिजेंजियल प्रोलिफेटिव पैटर्न ऑफ इंजरी। और लाइट माइक्रोस्कोपी पे आप सिर्फ पैटर्न ऑफ इंजरी बता सकते हैं, डिजीज़ नहीं डायग्नोज कर सकते। एक आध डिजीज़ हैं जो आप लाइट माइक्रोस्कोपी पे डायग्नोज करते हैं, वरना मेजॉरिटी में आप पैटर्न ऑफ इंजरी बता सकते हैं। ये अगेन पीएस स्टेन के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे क्या एबनॉर्मलिटी है? मिजेंजियम के अंदर थोड़ा सा मैट्रिक्स बढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स प्रोमिनेंट है। और ये लीजन्स क्या है? ये एक्सूडेटिव लीजन्स है, हाइलिनोसिस है। इंसूडेटिव लीजन्स, एक्सूडेटिव लीजन्स जो भी बोले, हाइलिनोसिस है। और ये हाइलिनोसिस कहाँ पे? बाउमेंस कैप्सूल से नीचे की तरफ
बाउमिन्स स्पेस में आ रहा है, ये कैप्सुलर ड्रॉप कहलाते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये है क्या मटेरियल, क्या होता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। जब एंडोथीलियम इंजरी होती है, डायबिटीज में एंडोथीलियम इंजरी होती है डिफ्यूज पूरी बॉडी में, तो वो लीकी हो जाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स वो कैपिलरीज में जाके वाल्स में जमा होते हैं और दे गिव अपीयरेंस लाइक ये एक्सुडेटिव लीजन्स। ठीक है, ये भी पीएस पे हाईलाइट होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी सेल्स की भी प्रोलिफरेशन है। अदरवाइज डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपकी सेलुलर प्रोलिफरेशन इतनी नहीं मिलती, बिकॉज इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड नहीं है। अच्छा, ये तो ट्यूब्यूल्स हैं, ये आर्टीरियोल है, ये भी आर्टीरियोल है। ये देखिए, ये आर्टीरियोल है, पूरा ऐसा तिरछा कटा हुआ है। दिस इज द अगेन हाइलिनोसिस, आर्टीरियोलर हाइलिनोसिस, और नोडुलर टाइप का है। नोडुलर ये किस कंडीशन मिलता है? ये CNI टॉक्सिसिटी में, ये ग्राफ्ट वाइसिस में हम देख रहे होते हैं, CNI टॉक्सिसिटी में इस तरह का नोडुलर। अच्छा, और भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसमें भी हाइलिनोसिस मिलता है, लेकिन वो सर्कमफेरेंशियल होता है, पूरे वाल को इन्वॉल्व करेगा, इस तरह का नोडुलर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी अगेन PS स्टेन, उसकी यूटिलिटी हम देख रहे हैं। तो ये ग्लोम नॉर्मल है, एबनॉर्मल? माइल्डली, मॉडरेटली, सीवियर एबनॉर्मलिटी। ये ग्लोम अपना काम करेगा या नहीं कर सकेगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, क्यों? इसलिए कि ये कोलैप्स हो गया, टफ्ट जो है पूरा कोलैप्स है, ये टफ्ट है। वरना नॉर्मल में हम देख रहे थे टफ्ट पूरा ग्लोम उससे भरा हुआ था, टफ्ट ओपन था, लेकिन यहाँ पे कोलैप्स हो गया। और दिस बाउमिन्स स्पेस इज फिल्ड, मैं शुरू में बता रहा था कि ये ओपन होना ज़रूरी है। यहाँ पे बाउमिन्स स्पेस भी बंद है और कैपिलरी ल्यूमिना भी बंद है, तो ज़्यादा ये ग्लोम तो काम नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? एक्स्ट्रा कैपिलरी, गुड, एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन। ये पैराइटल सेल्स की है या विसरल एपिथेलियल सेल्स की? पैराइटल सेल्स की है, इसलिए कि ये सेल्स देखिए यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं और अंदर की तरफ आ रहे हैं, और टफ्ट को इन्होंने पैसिवली कोलैप्स किया हुआ है। ये टफ्ट का जो कोलैप्स है, दिस इज पैसिव बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ सेल्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये पैराइटल सेल्स की प्रोलिफरेशन है। और इस लीजन को क्या कहते हैं? क्रीसेंट, ट्रू क्रीसेंट। सूडो क्रीसेंट जो है, दैट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ, अच्छा वो उसका एग्जांपल आगे हम देखेंगे। अगर विसरल एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन वो भी एक्स्ट्रा कैपिलरी होती है, लेकिन उसको हम सूडो क्रीसेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर सिल्वर स्टेन भी उन्हीं स्ट्रक्चर्स को स्टेन करता है जिनको PS करता है। इन एडिशन ये स्पाइक्स को भी दिखाता है। ठीक है, ये स्पाइक्स हैं, आप देख रही है, ये स्पाइक्स किस कंडीशन में आती है? मेम्ब्रेन आती है। ये स्पाइक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का मटेरियल है। दीज आर नॉट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपको नज़र नहीं आते, सिर्फ स्पाइक्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, इवन GBM भी रिस्पॉन्ड करती है अगर डिपॉजिट्स होते हैं सब एपिथेलियली। ये ट्राइक्रोम स्टेन में आप फाइब्रोसिस, इसमें ग्रीन नज़र आएगा, जो फाइब्रस टिश्यू है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। नॉर्मली आपने देखा था बिल्कुल भी फाइब्रस टिश्यू नहीं होता, ट्यूब्यूल्स बैक टू बैक होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ट्यूब्यूल्स के बीच में दिस ग्रीन स्टफ, दिस रिप्रेजेंट्स कोलाजन फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। अच्छा, कांगोरेट स्टेन काय के लिए यूज होता है? इसकी क्या एक खास रिक्वायरमेंट है टेक्निकल? थिक सेक्शंस, इसके लिए थिकर सेक्शन चाहिए होते हैं 7 to 8 माइक्रोन के। अदरवाइज हम जो रीनल बायसिस देखते हैं बहुत थिन सेक्शंस पे 2 to 3 माइक्रोन्स पे देखते हैं, लेकिन इसके लिए थिकर सेक्शन होना चाहिए। और कांगो रेड जैसे नाम से जाहिर है, स्टेन ऐसा है, इसका कलर रेड होता है। ठीक है, लेकिन ये आम लाइट माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो इस तरह रेड नज़र आएगा, इससे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। फिर आप इसको पोलराइज कर दें, ठीक है, वो
स्पेशल लेंसेज होते, उसकी मदद से आप पोलराइज करके देखते हैं, तो क्या होना चाहिए? एप्पल ग्रीन बायरफिंजस, इस तरह की एप्पल ग्रीन बायरफिंजस। जब पोलराइज करेंगे तो ये अगर बायरफिंजस आए तो इसको आप अमाइलोइडोसिस डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था लाइट माइक्रोस्कोपी और उसमें स्पेशल स्ट्रेन। अब आते हैं आईएमएफ। आईएमएफ हम क्यों करते हैं, क्या है उसका रीज़न? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को, इम्यून या एंटीबॉडीज़ की डिपोजिशन को देखने के लिए। और इसमें आप सबसे पहले टाइप देखते हैं कि कौन से इम्यून रिएक्टेंट्स हैं, फिर आप उनका लोकेशन देखते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं, लीनियर है, ग्रेनुलर है या बैंड लाइक है, एंड फाइनली इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 0 to 3 तक करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। अच्छा, टाइप में हम 5 जो है इम्यून रिएक्टेंट्स वो मोस्टली यूज करते हैं। ऑफकोर्स ये पैनल वेरी करता है, ये 5 जो है ये मिनिमम है, मिनिमम रीनल पैनल है। इसमें 3 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स हैं, C3, C1Q, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये 3 इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। और कैपा लेमडा ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग C4D भी नेटिव रीनल बायसिस भी करते हैं, लेकिन बेसिकली ये ग्राफ्ट बायसिस का है और फिब्रिन को करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लोकेशंस जो कौन कौन सी हो सकती, ये कौन सी लोकेशन है? मेसेंजियल, और ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है। स्पेशली जो सर्कुलेशन से आके डिपॉजिट होते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन लोकेशन ये। और ये अगर डिपॉजिट्स यहीं पे होंगे तो रिस्पांस क्या आएगा? मेसेंजियल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। ये लोकेशन, सेकंड लोकेशन क्या है? सब एंडोथीलियल, प्लाज्मिमल लेयर में डिपॉजिट्स है, इसमें आपको इन्फ्लेमेशन भी मिल सकती है। और ये सब एपिथीलियल, ठीक है। और ये इंट्रामेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के अंदर भी आपको डेंस डिपॉजिट डिजीज में इंट्रामेम्ब्रेनस मिलते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस लोकेशंस है और सारे लोकेशंस में मिले हैं, उसका एग्जाम्पल बताएं। ल्यूपस, ल्यूपस में आपको हर जगह डिपॉजिट मिल सकते हैं। कोई भी सवाल रीनल पैथोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाए, जवाब ना आता हो तो ल्यूपस का नाम ले लिया करें, वो जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। ल्यूपस में आपको हर तरह का लीजन मिल सकता है। ये टाइप में क्या है और लोकेशन? मेसेंजियम में। ये कैपिलरी वॉल्स हैं, ये देखिए ना, कैपिलरी वॉल्स और ग्रेन्युलर है। जहाँ ग्रेन्युलर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी वाली होती है वहाँ आपको लीनियर भी धोखा दे सकती है, जैसे यहाँ पे लग रहा है जैसे लीनियर हो, लेकिन वहाँ से देखें तो इट इज़ ऑल ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर मेम्ब्रेनस पॉजिटिविटी है मोस्टली। मेसेंजियम अगर होती है तो जैसे ये सेंटर में है, इस तरह की ये एरियाज मेसेंजियम के, मेसेंजियम में नहीं है, ये कैपिलरी वॉल के अंदर है, ठीक है। ग्रेन्युलर है, इंटेंसिटी ये मैक्सिमम है 3+ इसको आप कह सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस? मेसेंजियम IgA, इसका डायग्नोसिस बता सकते हैं? IgA नेफ्रोपैथी, ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसका आप देखें पैटर्न जो होता है, जस्ट लाइक स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, ये सेंटर में होता है। और ये जो कैपिलरी वॉल वाला होता है पेरीफ्री पे होता है, रिंग की फॉर्म्स में, पेरीफ्री में। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये GBM जो है एक ही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई पूरे ग्लोम में एक ही GBM है, ठीक है। तो ये कैपिलरी वॉल की पॉजिटिविटी, ये मेसेंजियल पॉजिटिविटी, ये मेसेंजियम या कैपिलरी वॉल या दोनों जगहों पे? कैपिलरी वॉल में है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ये लीनियर है। और टाइप क्या है? तो ये क्या हुआ? गुड पास्चर, IgM, नहीं सॉरी, ये गुड पास्चर वाला IgG की पॉजिटिविटी, ठीक है। ये ओनली एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉजिटिव, ट्रू लीनियर पॉजिटिविटी ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ये टाइप क्या है?
IgM, और यहाँ पे पॉजिटिविटी कहाँ पे है? लेकिन ये देखिए पूरा ग्लोम ये है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खास बात है? ये सेगमेंटल पॉजिटिविटी, ये ग्लोबल नहीं है, सेगमेंटल। तो FSGS में IgM की पॉजिटिविटी इस तरह की आपको मिल सकती है। ये मतलब इसकी कोई पैथोजेनिक सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग है, ठीक है। C3 भी आपको इसी पैटर्न में मिल सकता है। अच्छा, कमिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अब मेजॉरिटी ऑफ डिजीज, रीनल डिजीज कैन बी डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी और IMF, लेकिन देर आर सम डिजीज जो EM के बगैर डायग्नोज नहीं कर सकती। उसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? GBM के डिसऑर्डर्स, हेरिडिटी डिजीज ऑफ GBM, एल्पोर्ट, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये दो ऐसी डिजीज हैं जो आप EM के बगैर डायग्नोज नहीं कर सकते। ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें देखिए मेम्ब्रेन कितनी थिन है, बहुत थिन होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म थिनिंग होती है। और ये इसमें आप यहाँ पे देखें, ये वाली देखें, ये नॉर्मल है यहाँ तक, फिर आगे क्या हो रहा है? थिकनिंग हो रही है, इरेगुलर थिकनिंग, थिनिंग, ये स्प्लिटिंग। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो रही है? थिकनिंग, इरेगुलर थिकनिंग। ये एल्पोर्ट है, ठीक है, इसमें थिकनिंग, थिनिंग, स्प्लिटिंग। ये GBM की इस तरह स्प्लिटिंग होती है, लेमिनेशन। इसमें क्या एब्नॉर्मलिटी है? ये क्या स्ट्रक्चर है? GBM, ठीक है। ये अंदर वाली साइड पे क्या होता है? एंडोथीलियम है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये इंसेट में देखें, दिस इज नॉर्मल। ये क्या है? पिरामिड शेप्ड फुट प्रोसेसेस है, यहाँ पे है नहीं है, ये फुट प्रोसेस की फ्यूजन। ये किस डिजीज में मिलता है? FSGS, MCD, एनी प्रोटीन्यूरिक कंडीशन, उसमें आपको ये मिल सकता है, ठीक है। ये डिपॉजिट्स कौन से वाले हैं, किसको आप कह रहे? अच्छा, कहाँ पे है? व्हाट इज दिस? ये एंडोथीलियम है, थिन फेनेस्टेड एंडोथीलियम, दिस इज द GBM, ठीक है। ये डिपॉजिट्स हैं, ब्लैक कलर की, ये डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स। और इन बिटवीन डिपॉजिट्स ये GBM की एक्सटेंशन हैं, दीज रिप्रेजेंट स्पाइक्स। लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो हम स्पाइक्स नजर आती है, वो ये वाली एक्सटेंशंस हैं GBM की, ठीक है। डिपॉजिट्स आपको नजर नहीं आते, तो ये क्या डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं? सब एपिथेलियल स्पेस में, मेम्ब्रेनस GN, स्टेज 2 मेम्ब्रेनस GN, स्पाइक वाला स्टेज है, ठीक है। ये क्या एब्नॉर्मलिटी है? ये डिपॉजिट्स है, किस लोकेशन में? सब एंडोथीलियल लोकेशन, ठीक है। ये फुट प्रोसेस वाली साइड है, बाहर वाली साइड है, कॉन्केव साइड जो है सब एंडोथीलियल साइड है, ठीक है। ये MPGN टाइप 1, MPGN टाइप 1 में इस तरह के डिपॉजिट्स। फिर मिजेंजियल सेल की पॉलिफेशन होती है, एंडोथीलियल सेल की पॉलिफेशन होती है। और ये टाइप 2 MPGN, इसमें आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स मिलते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन ड्रेन्स होते हैं, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन ड्रेन्स। और ये सॉसेज शेप इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। और GBM के ब्रेक्स भी आपको एक्चुअल ब्रेक्स भी मिल सकते हैं, टाइप 2 MPGN। ये मिजेंजियम के अंदर डिपॉजिट्स है, बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। ये और पैरामिजेंजियल एरियाज, ये पैरामिजेंजियल एरियाज हैं, ये मिजेंजियम, ये बड़े बड़े डिपॉजिट्स, IgA नेफ्रोपैथी के, IgA के बड़े बड़े डिपॉजिट्स। ये अमालाइड के फिब्रिल्स, थिन फिब्रिल्स, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में रन कर रहे होते हैं, ऑफ इनडिटर्मिनेट लेंथ, आपको लेंथ का नहीं पता चलता कितने। ये फेब्रिल डिजीज में इस तरह की इंक्लूजन्स मिलती है आप, ठीक है। अब कमिंग टू बायोप्सी को हम पैथोलॉजी में कैसे अप्रोच करते हैं, तो सबसे जो कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट इज द क्लिनिकल सिंड्रोम। क्या सिंड्रोम क्या है? अब केसेस में आप लोगों से हम पूछेंगे ये सिंड्रोम क्या है, क्योंकि
क्लिनिकल सिंड्रोम ये आप लोगों का डोमेन है, ठीक है। फिर आप बायोप्सी को सिस्टमेटिकली देखते हैं, पूरे सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं, विच कंपोनेंट इज द मेन टारगेट ऑफ इंजरी, और फिर उसको हम उसको उसकी नेचर देखते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उससे पैथोलॉजिक डायग्नोसिस बनती है। लेकिन फिर आप सीरोलॉजी, ईएम, आईएमएफ सबको मिला के फाइनल डायग्नोसिस तब करते हैं, ठीक है। तो ये सिंड्रोम्स आपको पता है। अब जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इंडिकेशन का हमें पता चलेगा, ये 3 डिजीज़ जो हैं ये हमारे जहन में सबसे ज़्यादा है। बच्चा होगा तो एमसीडी होगा, या सेकंड पे एफएसजीएस, और बड़ा है तो एफएसजीएस मेम्ब्रेनस, ये हम टॉप पे रखेंगे, फिर एमसीडी, बाकी रेयर है। ये प्राइमरी डिजीज में दीज आर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सिंड्रोम की डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, तो उससे आसानी हो जाती है। नेफ्रिटिक सिंड्रोम का डिजीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। नेफ्रिटिक पिक्चर होगी तो आप इनमें से किसी को कंसीडर करेंगे। हिमेचुरिया अगर हो रहा है तो कुछ और डिजीज़ होंगी, आरपीजीएन में कुछ और डिजीज़ होंगी, ठीक है। तो कमिंग टू बायोप्सी, उसमें सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी से शुरू करते हैं, यानी लाइट माइक्रोस्कोपी से, और ये मेन स्टे है। लेकिन मॉर्फोलॉजी अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस इन केस ऑफ रीनल डिजीज, ये इसको आपको सप्लीमेंट करना होता है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ग्लोमेरुलाई रिएक्ट इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ वेज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंजरी। बहुत सारी इंजरीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंजरी कौन सी है जो ग्लोम्स को डैमेज करवाती? कोई एक अगर बोला जाए, डिजीज के काजेस पढ़े होंगे इन पैथोलॉजी में, उनको आप कन्वीनियंटली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, हेरिडिटी, एक्वायर्ड। हेरिडिटी फॉर्म्स भी होते हैं जिनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिनमें ग्लोमेरुला इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक्वायर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड में इम्यून मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोम्स में। ऑफकोर्स सीवियर इस्कीमिया होगा तो एक्यूट कार्टिकल इन्फार्क्शन में नेक्रोसिस हो जाता है, लेकिन वो इतना ग्लोम्स को अफेक्ट नहीं करता। इम्यून मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लोम रिस्पॉन्ड करता है इन लिमिटेड नंबर ऑफ वेज, वो मॉर्फोलॉजिक पैटर्न्स कहलाते हैं, वो अभी आगे, बाकी ये यहाँ पे देख रहे हैं। ग्लोम में माइनर चेंजेस मिल सकती है, मेसेंजर पॉलिफिकेशन मिल सकती है, मेम्ब्रेन की थिकनिंग मिल सकती है, मेसेंजर कैपिलरी पॉलिफिकेशन मिल सकती है, एंडो कैपिलरी पॉलिफिकेशन मिल सकती है, एक्स्ट्रा कैपिलरी पॉलिफिकेशन, नेकोटाइजिंग चेन, ये सारे ये रिस्पॉन्सेज हैं ग्लोम के टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंजरी, पर्टिकुलरली इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून मैकेनिज्म्स। वन पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिक पैटर्न मे बी सीन इन मैनी डिजीज। मिसाल उसका है मेसेंजर पॉलिफिकेशन। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें सिर्फ आपको मेसेंजर पॉलिफिकेशन, तो जब तक आप आईएमएफ, ईएम और कोरिलेशन नहीं करेंगे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ठीक है। मेसेंजर पॉलिफिकेशन इज नॉट ए डायग्नोसिस। इसी तरह वन डिजीज में प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम ऑफ पैटर्न्स। ल्यूपस क्लास 1 और होता है, क्लास 2 और होता है, 3, 4 और होते हैं, 5 अलग होता है। और variety of renal morphological patterns can lead to same clinical syndrome। तो ना इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक है, ना मॉर्फोलॉजी स्पेसिफिक है, इसलिए आपको ये सारी कोरिलेटिव डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। अच्छा, फिर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? मुख्तलिफ तरीक़ों से आप कर सकते हैं, हेरिडिटरी वर्सेस एक्वायर्ड, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, पॉलीफेटिव वर्सेस नॉन पॉलीफेटिव, और नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजन्स पे कर सकते हैं। अब जो फेवर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो इटियोपैथोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कॉमन पैटर्न्स ऑफ इंजरी है। तो इसको एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। ये इसमें कैसा पैटर्न है? सॉरी, क्या एबनॉर्मल थी? ग्लोम नॉर्मल लग रहा है, एबनॉर्मल? नॉर्मल तो आप कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि जब भी बायसी होती है कोई ना कोई पैथोलॉजी तो होगी, बेशक वो लाइट माइक्रोस्कोपी पे नज़र ना आए। जैसे सिल्वर स्टेन, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी या मॉर्फोलॉजी है, इस पर क्या पैटर्न है? इनमें से चलें, इनमें से आप देख लें, 8 मुख्तलिफ पैटर्न हैं, इनमें से कौन से पैटर्न पे फिट हो रहा है?
माइनर चेंजेस, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी ल्यूमिना पेटेंट है, बाउमेंस कैप्सूल भी पेटेंट है, कोई एडिशन नहीं है, ल्यूमिना पेटेंट है, मिजेंजियम भी बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, माइनर चेंजेस। अब डायग्नोसिस बताएं। एमसीडी किसने बोला? नहीं, इस पे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ठीक है, सिर्फ दिस इज जस्ट लाइट माइक्रोस्कोपी। इस पे आप कह सकते हैं माइनर चेंजेस। इसका आप आईएमएफ करेंगे, ईएम करेंगे, क्लिनिकल भी देखेंगे, फिर जाके आप डायग्नोसिस बनाएंगे। ये इसकी डीडी है। ऑफ कोर्स एमसीडी टॉप पे आएगा, स्पेशली जब चाइल्ड में एफएजीएस भी हो सकता है, अर्ली प्री स्पाइक मेम्ब्रेनस, अर्ली स्टेज अमाइलोइडोसिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, ल्यूपस क्लास 1, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अल्पोर्ट, आईजीएम, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सपोज आईएमएफ नेगेटिव है, ये ईएम है, अब डायग्नोसिस बताएं। अच्छा, ये क्या स्ट्रक्चर है? ये आरबीसी है। आरबीसी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, ब्लैक जेट ब्लैक नजर आते हैं ईएम पे। ये आरबीसी है, ये ल्यूमेन है, ठीक है, ये एंडोथीलियम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। कहीं कहीं पे ये थोड़ी सी पार्शल इफेसमेंट है, यहाँ पे थोड़े से इंटेक्ट है, स्वॉलन है लेकिन थोड़े से इंटेक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल फ्यूज हो गए। यहाँ पे ये दूसरी कैपिलरी, यहाँ पे भी फ्यूज है। ये जैसे फिंगर्स अलग अलग दिख रही है, नॉर्मली फुटपाथ ऐसे होते हैं, लेकिन अब मिल गई तो फुटपाथ मिल जाते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस बताएं। सॉरी, एमसीडी एफएजीए दोनों हो सकते हैं। पोडोसाइटोपैथी है, लेकिन थिन बेसमेंट नहीं है क्योंकि जीबीएम ठीक है, अल्पोड नहीं है, कोई डिपॉजिट्स नहीं है, बाकी सारी डायग्नोसिस आउट हो गई। लेकिन एमसीडी एफएजीएस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों में पोडोसाइटोपैथी है, ठीक है। तो पोडोसाइटोपैथिक डिसऑर्डर है। ये मिजेंजियम है, इसमें यहाँ पे भी कोई डिपॉजिट्स नहीं है। ये हाई पावर में फ्यूजन ऑफ फूड प्रोसेसेस, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हो गए। ये डेंसिटीज हैं, वो फूड प्रोसेस के अंदर साइटोप्लाज्मिक डेंसिटीज हैं, डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है। तो और ये जीबीएम है, एंडोथीलियम है। इस लीजन को क्या नाम देंगे? ये पैटर्न, इस पैटर्न को, लीजन को क्या नाम देंगे? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। गुड। फोकल क्यों बोला? 3 में से 1 इन्वॉल्व है, ये ऊपर वाला। और सेगमेंट इसलिए कि इसका भी आधा पोर्शन इन्वॉल्व है, ये वाला पोर्शन ठीक है। ये आर्टीरियोल है, वेस्कुलर पोल है, और ये एब्नॉर्मल है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ द लीजन क्या है? स्क्लेरोसिस है। स्क्लेरोसिस क्या होता है? स्क्लेरोसिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्क्लेरोसिस नथिंग बट इंक्रीज इन मेसेंजर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बढ़ जाता है और कैपिलरीज भी कोलैप्स होके, कैपिलरी की वॉल्स जो है जीबीएम, वो भी इसके अंदर मर्ज हो जाती है और एक सॉलिड मास बन जाता है, सॉलिड मास। यहाँ पे कैपिलरीज ओपन है, टफ्टल आर्किटेक्चर ठीक है, लेकिन यहाँ पे टफ्टल आर्किटेक्चर भी लॉस हो चुका है, पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेसेंजर मैट्रिक्स और कोलैप्स ऑफ कैपिलरी वॉल्स, वो भी इसके अंदर बरी हो गई है। तो ये सॉलिड मास है, दिस इज स्क्लेरोसिस। और इसके अंदर हाइलिनोसिस, पिंकिश मटेरियल आपको मिल सकता है, हाइलिनोसिस भी इसके साथ साथ आपको मिल सकता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ये जब हम बायोप्सी में देते हैं तो अक्सर लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये इडियोपैथिक है। ज़रूरी नहीं कि ये इडियोपैथिक हो, ये बहुत सारी डिजीज़ में, हर डिजीज़ में ये वाला स्टेज आता है। हर डिजीज़ अगर प्रोग्रेस करेगी तो क्या अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्रॉनिक स्क्लेरोजंक्शन में चेंज होती है, तो वो इसके थ्रू सेगमेंट स्कारिंग से गुजर के फिर ग्लोबल स्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। तो ये फेज़ हर डिजीज़ में आता है, तो इसकी डिफरेंशियल बहुत वाइड है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये ग्लोम नॉर्मल एबनॉर्मल? अच्छा, ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट है सेगमेंटल? सेगमेंटल। कौन सा सेगमेंट? ये एबनॉर्मल है,
ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, स्क्लेरोसिस, वही वाला। इसमें अभी भी थोड़े सेल्स हैं, अल्टीमेटली ये सेल्स गायब हो जाएंगे। मैट्रिक्स बढ़ा हुआ है, कैपिलरीज दिख रही है, कैपिलरीज नहीं, कैपिलरीज का ऑब्लिटरेट हो जाना ये स्क्लेरोसिस का एक फीचर होता है। और साथ में ये हाइलिनोसिस, स्क्लेरोसिस, हाइलिनोसिस, और भी एक फीचर है जो, हाँ, एडिशन फॉर्मेशन, बाउमेंस स्पेस यहाँ ऑब्लिटरेट हो गया। यहाँ पे बाउमेंस स्पेस पेटेंट है, लेकिन यहाँ पे एडिशन फॉर्मेशन, स्क्लेरोसिस, हाइलिनोसिस, एडिशन फॉर्मेशन, ये एफएजीएस के कार्डिनल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अगेन एफएजीएस, इसको फोकल कह सकते हैं? नहीं, फोकल नहीं कह सकते। कम से कम फोकल कहने के लिए कम से कम 3 किलोम चाहिए। यहाँ पे तो आपने फोकल कह दिया था, क्योंकि 3 में से एक इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे है ही एक, तो इस पे यहाँ पे ये फोकल वाला, डिफ्यूज वाला लागू नहीं होता। सेगमेंटल आप कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? सेम, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, सिल्वर स्टेन पे ये स्क्लेरोसिस है, ठीक है। और हाइलिनोसिस, पिंक जो है दिस इज हाइलिन, और एडिशन फॉर्मेशन। ये देखें छोटा, हर एफएजीएस दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ पे लीजन सेगमेंट एक को इन्वॉल्व किया है, उसमें आधा गिलोम इन्वॉल्व था, अल्टीमेटली ये पूरे गिलोम को इन्वॉल्व कर जाएगा, ग्लोबल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ग्लोबल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती, वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन ये वाला लीजन तो एफएजीएस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू नेचर ऑफ द लीजन्स, हम कह रहे थे नेचर, अभी तक हमने स्क्लेरोसिस देखा, ये यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। नेचर ऑफ द लीजन क्या है यहाँ पे? मेसेंजियल पॉलीफेशन, गुड। कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाले यहाँ पे भी कोई खास नहीं है, एक ही सेगमेंट के अंदर सेगमेंटल मेसेंजियल पॉलीफेटिव लीजन, ठीक है। आईजीए नेफ्रोपैथी का ये है क्लासिक पैटर्न, इस तरह का होता है, सेगमेंटल होती है इनिशियल, डिफ्यूज भी हो सकती है लेकिन सेगमेंटल, ठीक है। सेगमेंटल मेसेंजियल पॉलीफेशन। व्हाट अबाउट दिस? ये भी ग्लोबल या सेगमेंटल? कौन सा सेगमेंट एब्नॉर्मल है, ये या ये वाला? यहाँ पे क्या एब्नॉर्मलिटी है? नेचर ऑफ द लीजन क्या है? नेक्रोटाइजिंग, गुड, नेक्रोसिस, ठीक है। ये नेक्रोसिस हुआ है, यहाँ टफ्ट पूरा, यहाँ पे देखें टफ्ट, कैपिलरीज, मेसेंजियम सब इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा एक अगेन सॉलिड सा मास बन गया, लेकिन यहाँ पे सेल्स हैं, न्यूक्लियर डेब्रीज है, डस्ट है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, न्यूक्लियर डस्ट है, तो फिब्रिन भी आपको मिल सकता है। ये सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग लीजन, ये किसका हार्बिंगर होता है? इसको अगर हम ट्रीट ना करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स्ट्रा कैपिलरी, क्रिसेंटिक जीएन। क्रिसेंटिक जीएन बिगिन ऐसे होता है, सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग लीजन बनता है, फिर वहाँ से क्रिसेंट, ये जो बाउमेंस स्पेस है यहाँ पे, ये जो पेराइटल एपिथेलियम उसको रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। व्हाट अबाउट दिस? सेम, सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग लीजन। यहाँ पे तो ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द ग्लोम इज फाइन, लेकिन ये सेगमेंटल नेक्रोसिस, फिब्रिन वाला नेक्रोसिस, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स, पूरा सॉलिड मास बन गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पेराइटल सेल्स प्रिपेयरिंग फॉर पॉलीफेशन। यहाँ पे देखिए काफ़ी पॉलीफेट भी कर गया है, ये क्रिसेंट बनाएगा, ठीक है। फोकल नेक्रोटाइजिंग जीएन जैसे अभी मैंने बताया, ये क्रिसेंटिक का हार्बिंगर है। इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट सेम एज दैट ऑफ क्रिसेंटिक जीएन, उसी तरह की होती है। ये डीडीए ऑफ एफएजीएस, ये बाकी ग्लोमेरुलर डिजीज में भी ये वाला लीजन आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस जीएन, जब वो प्रोग्रेस करती है टुवर्ड्स क्रॉनिक स्क्लेरोसिस जीएन, तो आपको सेगमेंटल स्क्लेरोसिस का लीजन मिल सकता है, ठीक है। ये एफएजीएस में आईजीएम और C3 की डिपॉजिट्स इस तरह के मिलेंगे, सेगमेंटल डिपॉजिट्स।
ये नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ईएम पे आप बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, नॉन स्पेसिफिक होता है, कोलैप्स होता है, टफ। ये अनदर मॉर्फोलॉजिक पैटर्न, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सॉरी, स्टेनिंग। अच्छा, ये एचएन स्टेनिंग है। यहाँ पे आप देखिए, और से देखिए कैपिलरीज को क्या हो गया, ये इनके कॉन्टूर्स कैसे हैं, राउंडेड हो गए, टार्ट हैं। नॉर्मल जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं लैक्स होती हैं, ढीली होती हैं, रिडेंडेंट होती हैं, ऐसे अंडुलेटिंग होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल राउंडेड कॉन्टूर बन रहे हैं। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये तो जब भी कॉन्टूर्स कैपिलरीज के रिजिड हो जाएं तो ऑलवेज थिंक ऑफ मेम्ब्रेनस चाहिए। ये मेम्ब्रेनस है। थोड़ा सा मिजेंजियम भी यहाँ पे जैसे थोड़ा प्रोमिनेंट प्रोलिफरेशन दिख रही है, सेकेंडरीली हो सकती है। इसमें अब क्या दिखना चाहिए? स्पाइक्स ऑन सिल्वर स्टेन, ये स्पाइक्स है। अच्छा, इन स्पाइक्स के बीच में देखिए वाइट स्पेस है, दैट इज वेयर इम्यून डिपॉजिट्स आर फाउंड। वो लेकिन सिल्वर स्टेन पे वो डिपॉजिट्स नज़र नहीं आते, स्टेन नहीं लेते, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस है, वो आपको नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। और ये आईजीजी के, इसमें इडियोपैथिक में आईजीजी इस तरह है, ग्रेन्युलर पॉजिटिविटी अलॉन्ग कैपिलरी वॉल्स। और ईएम पे आपको इस तरह के डिपॉजिट्स, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, ये। अच्छा, स्टेजेस कितने होते हैं मेम्ब्रेनस के? 4 स्टेजेस। और स्टेजिंग के लिए कौन सी मॉडलिटी यूज़ करते हैं? किस? ईएम पे। आप लाइट माइक्रोस्कोपी या आईएमएफ पे नहीं कर सकती, सिर्फ ईएम पे कर सकती हैं। तो ये स्टेज 2 कहलाता है। देयर आर 4 स्टेजेस, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 1 में डिपॉजिट्स कम होते हैं, फ्यू एंड फार अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। ये देखिए ना, अलग अलग है। और इसमें मेम्ब्रेन का रिएक्शन नहीं आता, इसलिए आपको स्पाइक्स नहीं मिलेंगे। तो इसको आप स्पाइक, प्री स्पाइक स्टेज भी कहते हैं, प्री स्पाइक। स्टेज 2 में डिपॉजिट्स बिकम मोर न्यूमरस, क्राउडेड हो जाते हैं और रिएक्शन, मेम्ब्रेन का रिएक्शन आता है, स्पाइक्स बनती है, स्पाइक वाला स्टेज। और स्टेज 3 में डिपॉजिट्स बिकम इंट्रा मेम्ब्रेनस, ये स्पाइक्स ऊपर जाके मिल जाती हैं, ठीक है, ऊपर जाके मिल जाती हैं। और डिपॉजिट्स बिकम दे बिकम इनकॉर्पोरेटेड विद इन द जीपीएम, इंट्रा मेम्ब्रेनस हो जाते हैं। और स्टेज 4 में ये रिजॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मेम्ब्रेन रिमेन्स थिकेंड, लेकिन उसमें होल्स नज़र आते हैं, मॉथ ईटन अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, वो वाली अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है। तो अब ईएम पे इसका हमने कहा ना, स्टेजिंग ईएम पे कर सकते हैं। तो ये ईएम पे बताएं क्या स्टेज, कौन सा स्टेज होगा ये? स्टेज 1। डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, कितने हैं डिपॉजिट्स, कोई काउंट करके बताए? 1 2 3 4 5 6, काउंट कर सकते हैं, कम में। और दूर दूर हैं एक दूसरे से, बीच में यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जीपीएम का कोई स्पाइक नहीं है। स्टेज 1। व्हाट अबाउट दिस? ये तो देख चुके हैं। स्टेज 2, अब डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा है, आप काउंट नहीं कर सकते, और बीच में स्पाइक्स भी है, ठीक है। स्टेज 2 ये वाला। स्टेज 3 इंट्रा मेम्ब्रेनस हो गए ये डिपॉजिट्स, दोनों तरफ मेम्ब्रेन है। और ये वाला स्टेज 4, ये डिपॉजिट्स यहाँ पे थे, यहाँ पे ये डिपॉजिट्स की जगह, ठीक है, लेकिन अब ये खाली स्टेज 4। तो ये स्टेजिंग में भी ईएम, स्टेजिंग ऑफ मेम्ब्रेनस जीएन में भी काम आती है। तो मेम्ब्रेनस को फिर, मेम्ब्रेनस जीएन की डायग्नोसिस नॉट द एंड डायग्नोसिस, इसको आप क्लिनिशियन को फिर वर्कआउट करना होता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अब तो इसका सीरोलॉजिक मार्कर भी आ गया है, PLA2R, एंटी PLA2R, ठीक, उससे भी हेल्प मिलती है। तो इडियोपैथिक भी हो सकती है, सेकेंडरी में बहुत सारे फिर काजेस होते हैं। ये दिस इज अनदर मॉर्फोलॉजिक पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पैटर्न है? चलें, नॉर्मल या एबनॉर्मल, माइल्डली या सीवियर एबनॉर्मल?
माइल्डली, ठीक है। पॉलीफेटिव, नॉन पॉलीफेटिव, पॉलीफेटिव, एंडोकेपिलरी, एक्स्ट्रा कैपिलरी, एंडोकेपिलरी। तो पॉलीफेशन कौन से कंपार्टमेंट में हो रही है? मेसेंजियम में हो रही है। कैपिलरी लुमिना कैसे है? ठीक है, ठीक है, मेसेंजियल पॉलीफेशन। ये हाई पावर में अब खुल के मतलब मेसेंजियल पॉलीफेटिव आ गया है सामने, ठीक है। और ये कैपिलरी वाल्स, ठीक है, मेसेंजियल पॉलीफेटिव पैटर्न ऑफ इंजरी। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये नॉर्मल है, एक मेसेंजियल सेल है, ये कैपिलरी है, ये ल्यूमेन है, कैपिलरी वाल है। और यहाँ पे देखें, ये इसमें थोड़ा सा गलती है, 4 होने चाहिए, अब तो 3 आर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन पैराल पॉलीफेशन है मेसेंजियल। लेकिन इसमें ख़ास बात जो इसको मेसेंजियो कैपिलरी से या मेम्ब्रेनो पॉलीफेटिव से डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि इसमें कैपिलरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर इज नो थिकनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल, देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कैपिलरी ल्यूमेन। ल्यूमेन भी उतना ही है और थिकनेस भी उतनी है जितनी नॉर्मल की है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज मेसेंजियल पॉलीफेटिव पैटर्न ऑफ इंजरी। ये इसकी डीडी है, डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस ये है, ये फाइनल डायग्नोसिस, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो फिर आप IMF करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे तो इन डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। ये डायग्नोसिस बताएं, IgA। अब आप बता सकते हैं ये IgA नेफ्रोपैथी है। ये EM पे IgA के डिपॉजिट्स बड़े बड़े, और ये टिपिकली पैरामेसेंजियल लोकेशन में होते हैं। पैरामेसेंजियल वो एरिया है जहाँ एक कैपिलरी से रिफ्लेक्ट होकर GBM दूसरी कैपिलरी तक जाता है, वो पैरामेसेंजियल एरियाज कहलाता है। ये पैटर्न पॉलीफेटिव है, ठीक है। एंडोकेपिलरी, एक्स्ट्रा कैपिलरी, एंडोकेपिलरी, गुड। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा कैपिलरी कंपार्टमेंट बिल्कुल नैरो हो गया, वो इसलिए कि एंडोकेपिलरी कंपार्टमेंट से ग्लोम फूल जाता है तो वो स्पेस कम हो गया है। लेकिन देयर इज नो पॉलीफेशन इन बाउमेंस स्पेस, तो एंडोकेपिलरी ही है, ठीक है। इसमें ख़ास एक बात बताएं, क्या चीज़ है जो पिछले वाले पैटर्न से डिफरेंट? लोब्यूलेशन है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ल्यूमेन को देखिए, कैपिलरी ल्यूमिना पैटर्न है, नो, ठीक है। तो ये इसमें चूंकि मेसेंजियम के साथ कैपिलरीज भी इन्वॉल्व हो गई है, कैपिलरीज का ल्यूमिना ख़त्म हुआ मतलब कैपिलरीज इन्वॉल्व हुई है, तो इसलिए इसको नाम देते हैं मेसेंजियो कैपिलरी पैटर्न ऑफ इंजरी, या क्लिनिकल टर्म है मेम्ब्रेनो पॉलीफेटिव। मेम्ब्रेन की पॉलीफेशन हुई है, एक्चुअली मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये MPGN पैटर्न ऑफ इंजरी। और इसमें थोड़े बहुत इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपको दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स। ये कैपिलरी ल्यूमिना में न्यूट्रोफिल्स भी आपको इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। ये उसकी स्कीमेटिक डायग्राम नॉर्मल। ये सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स है, सब एंडोथीलियल, कॉन्केव साइड पे सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीफेशन मेसेंजियल सेल्स की। और ये क्या हो रहा है? इंटरपोजिशनिंग, मेसेंजियल सेल्स की प्रोसेसेस की इंटरपोजिशनिंग इनटू द कैपिलरी वॉल। ये कैपिलरी वॉल में, अच्छा, ल्यूमेन को क्या हो गया? नैरो हो गया या ऑब्लिटरेट हो जाता है, इनफैक्ट ऑब्लिटरेट हो जाता है। ल्यूमेन नैरो हो गया और कैपिलरी की वॉल भी थिक हो गई। ये यहाँ तक थी और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, 3 गुना थिक हो गई है। एक नई बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। दिस इज द न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द ओरिजिनल बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो डबल कॉन्टूरिंग कहते हैं। आपको PS और सिल्वर पे 2 लाइन ही नज़र आएंगी, तो इसलिए इसको डबल कॉन्टूरिंग भी कहते हैं और ट्राम ट्रैक अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट्स की वजह से, मेसेंजियल इंटरपोजिशनिंग की वजह से और नई बेसमेंट मेम्ब्रेन बनने की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। इसमें आपको कहीं दिख रहे हैं ये डुप्लीकेशन? यहाँ देखें कितनी मेम्ब्रेन्स है? डबल, डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे डबल, ठीक है। ये डबल कॉन्टूरिंग सिल्वर पे या PS पे, HNE पे आपको नहीं अप्रिशिएट होगा। ये HNE थी, इस पर आप लोब्यूलेशन देख सकते हैं, ल्यूमिना का ऑक्लूजन देख सकते हैं, लेकिन ट्राम ट्रैक अपीयरेंस या डबल कॉन्टूरिंग यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ये सेमी थिन सेक्शन है। EM करने से पहले एक स्टेज आता है
उसमें आप देखें ये डबल कंटूरिंग, ये ओरिजिनल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन सी सही बनी हुई है, न्यू वाली या ओरिजिनल वाली? हाँ, ओरिजिनल वाली। न्यूली फॉर्म्ड हैफाजार्डली बन, इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है, साथ में जीबीएम का काम चल रहा होता है, तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पे भी आप देखें ये न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द ओरिजिनल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ट्राम ट्रैकिंग, ठीक है। ये भी एक डिजीज नहीं है, पैटर्न ऑफ इंजरी है, बहुत सारे डिजीज में है, इडियोपैथिक, सेकेंडरी, बहुत सारे काजेज में आपको ये पैटर्न ऑफ इंजरी। लेकिन इस पैटर्न का शर्त क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डिपॉजिट्स मेसेंजियम के अलावा सब एंडोथेलियल स्पेस में भी चले जाते हैं। जिस कंडीशन में भी ये डिपॉजिट्स अगर सब एंडोथेलियल का मेसेंजियल और सब एंडोथेलियल दोनों लोकेशन में आएंगे तो ये पैटर्न आपको आएगा। तो ये मेसेंजियल से ज़्यादा सीवियर है, ठीक है ना, इसमें जीएफआर भी अफेक्ट होता है। आईएमएफ में इस तरह का पैटर्न आएगा, इसमें कैपिलरी वॉल्स में भी डिपॉजिट्स हैं और मेसेंजियम में भी है, दोनों जगह पे आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं आईजीजी के। और ईएम पे आपको इस तरह के सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये टाइप 2 जो है वो ईएम पे अच्छा, ईएम की यूटिलिटी में एक टाइप 2 की डायग्नोसिस भी आप ईएम के अलावा नहीं कर सकते, ये डेंस डिपॉजिट डिजीज की, ठीक है। तो वो डेंस डिपॉजिट डिजीज, इसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स होते, डिस्क्रीट नहीं होते, कंटिन्यूअस ऐसे सॉसेज शेप्ड। अच्छा, ये इसको मॉर्फोलॉजी भी क्या हम क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। और अब इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, इम्यूनोपैथोलॉजी क्लासिफिकेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो अब ज़्यादा मैनेजमेंट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिक मॉर्फोलॉजिक जो थी और ईएम बेस्ड होती थी टाइप 1 टाइप 2, वो अब ऑब्सोलीट है। नाउ इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस रिजल्ट्स। तो ये मॉर्फोलॉजिक क्लासिफिकेशन में क्लासिकल है, डिफ्यूज होता है, और नोडुलर भी हो सकता है, एक्सूडेटिव हो सकता है, फोकल सेगमेंटल भी हो सकता है, और एमपीजीएन विथ मैसिव डिपॉजिट्स, ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें डिपॉजिट्स आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे नज़र आते, और क्रिसेंटिक भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर मॉर्फोलॉजिक टाइप्स। ये कौन सा पैटर्न है इन मॉर्फोलॉजिकली, ये कौन सा टाइप होगा? यहाँ पे डुप्लीकेशन है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कैपिलरी लूप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये फोकल सेगमेंटल एमपीजीएन, ठीक है, फोकल सेगमेंटल एमपीजीएन, ये इसके भी वही इम्प्लीकेशंस वही हैं जो एमपीजीएन वाली है। ये एमपीजीएन विथ मैसिव डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स हैं, ये सारे डिपॉजिट्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओवल शेप के ल्यूमिन के अंदर हैं, इनको क्या कहते हैं? हाइलेन थ्रोम्बाई, हाइलेन थ्रोम्बाई। और इसमें आप देखें ये वायर लूप्स हैं, कैपिलरीज के वॉल्स के साथ ये इस तरह के पिंक रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वायर लूप्स हैं, ये डिपॉजिट्स हैं, इम्यून डिपॉजिट्स हैं। ये कहलाता है पैटर्न एमसीजीएन या एमपीजीएन विथ मैसिव डिपॉजिट्स। ये बहुत कम डिजीज में, ल्यूपस में, क्रायो में, एचसीवी में इन कंडीशन मिलता है। तो ये बड़ा डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ इंजरी है, ठीक है। और इसमें अब आईएमएफ करने की ज़रूरत नहीं, ईएम करने की नहीं ज़रूरत, लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं। ये वही पीएस स्टैंड पे मैसिव डिपॉजिट्स, ये थ्रोम्बाई, जब ल्यूमेन में है तो हाइलेन थ्रोम्बाई कहलाते हैं, और जीबीएम के अलावा गए हैं तो वायर लूप्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आईएमएफ पे इस तरह के रिबन लाइक मिलेंगे, ये वायर लूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिबन लाइक। ये ईएम पे इस तरह के मैसिव डिपॉजिट्स, ये सारे, ये जीबीएम है, कितने बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ये पैटर्न क्या है? पॉलीफेटिव, नॉन पॉलीफेटिव, एंडोकैपिलरी, एक्स्ट्रा कैपिलरी। और इसमें खास बात क्या है?
इंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन तक तो ठीक है, आगे खास बात क्या है? न्यूट्रोफिल्स देखिए, ये सारे न्यूट्रोफिल्स हैं। एक्सूडेटिव जीएन है, एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेटिव एक्सूडेटिव जीएन, PIGN, उसमें आपको इस तरह का नजर आएगा, ये भी वही है। तो सॉलिड ग्लोम्स दो ही कंडीशंस में होते हैं, ये नेफ्रो के रेजिडेंस के लिए, या MPGN होगा या ये एक्सूडेटिव जीएन होगा। इसमें ल्यूमिना ऑब्लिटेट इसलिए हुए हैं कि ल्यूमिना के अंदर न्यूट्रोफिल्स भरे हुए, लेकिन MPGN में इसलिए होगा कि उसमें कैपिलरी वॉल की इन्वॉल्वमेंट हुई है, थिकनिंग हो गई है, इसलिए ल्यूमेन नैरो हो जाते हैं। इसमें ल्यूमेन में न्यूट्रोफिल्स हैं, एक्सूडेशन है, ये सारे न्यूट्रोफिल्स हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लिया वाले, ठीक है। ये IMF IgG स्टार स्काई पैटर्न कहते हैं, स्टार स्काई पैटर्न, लंपी बम्पी पैटर्न ऑफ IgG C3 की डिपॉजिट, इस तरह के बड़े बड़े लंप्स होते हैं, और ये EM पे ये हम्प्स की शक्ल में होते हैं, ये सब एपिथेलियल हम्प, दिस इज द फुट पार्सल फ्यूजन, ये GBM है और ये हम्प है, सब एपिथेलियल हम्प। ये मेरे ख्याल में फाइनल पैटर्न होगा, ये देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या है? एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन क्रीसेंट, ट्रू क्रीसेंट। अच्छा, इसको क्लासिफाई हम कैसे करते हैं? दो इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ये सेलुलर है, फाइब्रस है या फाइब्रो सेलुलर है ये, और दूसरा IMF की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। IMF में हमें क्या मिलेगा? ये सेलुलर वाला था, ये सारा सेलुलर है, सारे सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है, क्यों ये रिस्पांस आता है? कैपिलरीज रप्चर होती है, कैपिलरीज फट जाती है, तो ब्लड कहाँ आ जाता है? बाउमेंस स्पेस में। बाउमेंस स्पेस इज नॉट मीन्ड फॉर ब्लड, वो ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट के लिए, उसमें जब ब्लड आएगा तो इरिटेट होगा, तो उसमें पेराइटल सेल रिस्पांस करेगा। जैसे इंटेस्टिन, सपोज इंटेस्टिन अगर रप्चर होता है तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होता है, एसाइटिस डेवलप होता है। इसी तरह ग्लोम का रिस्पांस तो दिस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ग्लोमल इंजरी और इमरजेंसी। रीनल पैथोलॉजी में ये इमरजेंसी कहलाती है, क्रीसेंटिक जीएन, इसकी डायग्नोसिस फौरन बतानी होती है, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में या तो आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जीएन क्रीसेंटिक जीएन को मतलब में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर इंजरी इतनी सीवियर हो, MPGN भी जा सकता है, मिजेंजियल प्रोलिफरेशन भी जा सकता है, PIGN भी क्रीसेंटिक में जा सकता है, अगर इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी है कि कैपिलरी रप्चर हो जाए। दूसरी सूरत बनती है कि लीनियर इम्यूनोग्लोबुलिन डिपॉजिट्स आपको मिले, वो anti-GBM में गुड पॉस्चर, या तो डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे। ये तीन टाइप्स हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, anti-GBM, और तीसरा पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस, सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है, पॉसी इम्यून। अच्छा, ये एक और पैटर्न है, इसमें ग्लोम में क्या दिख रहा है? कौन सा कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है? मिजेंजियम में सेल्स हैं या एसेल्यूलर है? सेल इक्का दुक्का कोई है, यहाँ पे ये एक सेल बचा हुआ है, लेकिन ये बड़े बड़े एरियाज हैं, एसेल्यूलर, शाइनी, हाइलिन, होमोजीनियस। ये पिंक तो नज़र नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल में इसके प्रोजेक्शन की वजह से, लेकिन ये पिंकिश होता है, ये अमाइलॉइड है। PS पे वीकली पॉजिटिव होता है, PS, दिस इज PS स्टैंड, ये पॉजिटिव है। और सिल्वर पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये सिल्वर पॉजिटिव, ये ऐसा ब्लैक आएगा, ये नेगेटिव है, सिल्वर नेगेटिव होता है। तो इन स्टेन से की हेल्प से भी आप थोड़ा बहुत इसको डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट स्टेनिंग के लिए आपको एप्पल ग्रीन बायोफिजिक्स चाहिए होती है। और फिर इसके मज़ीद क्लासिफिकेशन के लिए आप ISC भी यूज़ कर सकते हैं। ये अमाइलॉइड A है, अमाइलॉइड A पॉजिटिव है, तो कौन सा टाइप हुआ? सेकेंडरी। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है 95% ऑफ केसेस में सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस होता है। फाइनली ये, इसमें कौन सा कंपार्टमेंट हुआ? मिजेंजियम। सेल्स बड़े हुए हैं या मैट्रिक्स?
मैट्रिक्स ज़्यादा बड़ा, तो किस चीज़ का सोचना चाहिए? डायबिटीज़ का, ठीक है। मिजेंजियल पॉलीफेटिव जीएन है, क्लास 2 डायबिटीज़। यहाँ पे नोड्यूल भी बन गए, नोड्यूल भी बन गए। इसमें ये डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस था, यहाँ पे नोड्यूलर है। ये फिब्रिन कैप, नोड्यूल्स भी बने हुए हैं, ये ट्राइक्रोमिस्टेन है, और ये आर्टीरियोला हाइलिनोसिस है, फिब्रिन कैप है, ये एक्सुडेटिव या इंजुडेटिव लीजन्स है, ठीक है। इसमें एक तो मैट्रिक्स बढ़ता है, दूसरे हाइलिनोसिस वाले लीजन्स होते हैं। आर्टीरियोल्स में, ग्लोम की कैपिलरीज में, पीएस के स्टेन में हमने वो देखे थे, वो कैप्सुलर ड्रॉप थे, लेकिन अगर ग्लोम की अपनी कैपिलरीज में हो तो उनको फिब्रिन कैप कहते हैं। और आर्टीरियल हाइलिनोसिस है। आर्टीरियल हाइलिनोसिस डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ये डायबिटीज वाला दोनों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक है, जबकि हाइपरटेंशन वाला एफरंट को करेगा, इफरंट को नहीं करेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन वाला प्रेशर जो है एफरंट पे पड़ता है, नॉट ऑन इफरंट। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी की क्लासिफिकेशन है। ये क्लास 1 जो है ईएम पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। ईएम के बगैर आप उसमें जीबीएम की थिकनिंग भी हो जाती है। और 2A 2B मिजेंजियल की एक्सपेंशन है, 3 नोडुलर है, और 4 इज एडवांस्ड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो ये कौन सा वाला टाइप कहलाएगा? क्लास कौन सा होगा? जैसे सिल्वर स्टेन, ये क्लास कौन सी कहलाएगी? दोबारा देख लें, क्लास 1 जो है उसमें माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक एलएम चेंजेस, 2 में मिजेंजियल पॉलीफेशन है, 3 में नोडुलर है, और 4 एडवांस्ड है। अब इसका बताएं, क्लास 1, ठीक है, माइनर चेंजेस हैं, जीबीएम थिकेंड होगी, ईएम करना पड़ेगा, लेकिन आर्टीरियल हाइलिनोसिस है, ये देखिए, ये हाइलिन है, आर्टीरियल हाइलिनोसिस है, ये जीबीएम की थिकनिंग होगी, काफ़ी थिकेंड हो जाती है, ये अर्लीस्ट चेंज होती है। ये 2A 2B, हाँ, माइल्ड मिजेंजियल एक्सपेंशन वाला, ये 2B कहलाएगा, मिजेंजियल एक्सपेंशन। ये 3 नोडुलर वाला, नोडुल। अच्छा, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब वो केसेस के साथ करेंगे, ठीक है, थैंक यू। ये यहीं पढ़ा दो। Thank you so much, sir, for such a wonderful session and lecture. Now we have reached a wonderful midpoint in our event. Take us a brief interlude for refreshment. Please join us for a tea break. We will resume the session in a while. Thank you.